Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, this is the worst period we are passing through as far as unemployed youth is concerned. I have not seen such a scenario in my life when one after another exam is being postponed and the candidates are getting frustration day by day. But this is a threat to employment. This is a threat to our patience. This is a threat to our coolness. But can we convert this threat into opportunity? Yes. Because in this world of frustration, who will win? This frustration is for everyone, whether it is government jobs or bank jobs. All exams are being postponed. Earlier, banking exams were used to happen on time. But this year, IBPS has given a real shocker. Even SBI has given a shocker. They were not telling when they will declare the result. And suddenly they declared the result, announced the date of main examination. So the candidates are getting shock after shock. Who will win in such shocking situation? The person who is exam ready, who is not wasting his time in thinking what will happen. We have to take all these threats to our stride and work for future. Exams will happen. Jobs will be given by these organizations. All these are delayed. So this year, 2020 is going to be almost 0 year as far as conclusion of some exams are concerned. We will only see conclusion of 2 examinations in banking, that is SBI clerk or RBI assistant at the most. All other exams will remain open for 2021. So it will affect even future exams. So how to reconcile? I was thinking about it. How to get positive despite such a negative environment all around me? Can I still stand in this negative environment and take advantage over others? Answer is yes. My own suggestion to each one of you is this is the time when you should consolidate on your weak areas. And one area where you can consolidate is current affairs. Second area is banking knowledge. Third is English. So the people, those are not appearing for SBI Junior Associate or RBI Assistant Main, these candidates should consolidate on current affair, banking knowledge and English at least for next 10 days. The 10 days will give you cooling period when you can start focusing on other subjects also. So if you go by my advice, I will advise you to start reading current affairs backward. That means first read the current affair of October, then September, then August, and so on. And for your help, I have identified excellent source of current affair. Link is available in description box as well as comment box. Subscribe it and start reading from monthly PDF. Second time you should devote on watching banking awareness videos. A free link of 190 plus video I am providing you. Start watching 10, 15, 20 videos per day so that you become empowered in banking and financial knowledge. Third is start reading grammar book. Lay hand on a good grammar book. Wren and Martin is a good grammar book. So you can download the free PDF. Spend 1 or 2 hours on reading this grammar book. This will improve your English.
So if you utilize next 10 days on current affairs, banking knowledge and English, this can help you in all your examination, may it be mains, may it be pre. Because now first examination that will come your way will be IBPS clerk pre. No other exam is coming your way. The only people those are appearing for SBI Junior Associate or RBI Assistant Main, they may have 2 examination in between, but no other examination is coming till December. So I will advise in the remaining days of October, consolidate your current affair, banking knowledge and English knowledge. This will help you to tide over this bad patch and you will be focused on study. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। ऐसा बुरा वक्त अनएम्प्लॉयड यूथ की जिंदगी में शायद ही आया हो, जब एक के बाद एक एग्जाम पोस्टपोन होता जा रहा है। अगर वो एसएससी छोड़कर बैंकिंग में आता है तो परेशान है, बैंकिंग छोड़ के एसएससी में जाता है तो परेशान है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाता है तो परेशान है, रेलवे के एग्ज़ाम की तरफ जाता है तो परेशान है। कोई एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो रहा। एग्ज़ाम्स की डेट आ रही है फिर पोस्टपोन हो रही है, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। तो क्या हो रहा है, एक हर व्यक्ति के मन में दुविधा आती जा रही है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो परेशान होता जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करे। प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखता है, वहाँ नौकरी नहीं मिल रही, सरकारी जो जॉब टाइम पे हुआ करती थी वो टाइम पे नहीं हो रही। तो ऐसे में क्या करें? क्या ये जो थ्रेट हमारे सामने आया है हम इससे हार के बैठ जाएं, या हम इस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते हैं, परिस्थितियों से हम लड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो सरकार की मंशा है या जो उन लोगों की मंशा है जो इन पोजीशंस पे बैठे हैं, उनको हम रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं पर उनकी मंशा को बदल नहीं सकते। तो हमें क्या करना है? जब सब लोग निराश हैं, सब लोग परेशान हैं, क्या हम ऐसे के अंदर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम औरों से आगे निकल जाएं, हमारा ध्यान कहीं और चला जाए, ताकि हम इस वक्त को इस्तेमाल कर लें और फिर ये वक्त हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आए और हम जब एग्ज़ाम हो तो आगे लोगों से आगे निकल जाए। मैंने इसके बारे में सोचा है। सोचने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि इस अवधि को हम 3 क्षेत्रों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है करंट अफेयर को कंसोलिडेट करना, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत टाइम लगता है। अब भगवान ने हमें ये टाइम दे दिया है, क्योंकि जिन लोगों का एसबीआई जूनियर एसोसिएट है या आरबीआई असिस्टेंट मेन एग्जामिनेशन है, उनको तो उसी एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए। पर बहुत कैंडिडेट ऐसे होंगे जो दोनों प्री नहीं पास कर पाए हैं, अब उनके पास वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, तो वो क्या करें? उन्होंने माइंडसेट बनाया हुआ था कि आईबीपीएस के मेन की तैयारी कर लेंगे, तो वो क्या करें? उनको चाहिए कि इस टाइम को वो करंट अफेयर को कंसोलिडेट करने पे इस्तेमाल करें, कम से कम 10 दिन। एक तो उससे मन बदल जाएगा हमारा, हर समय हम सोचते रहेंगे, परेशान रहेंगे, किसी काम में लग जाएंगे तो ये परेशानी काफ़ी हद तक छट जाएगी। तो हम क्या करें? एक अच्छा करंट अफेयर का सोर्स जो मैंने आपको सजेस्ट किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दे दिया है, इसको आप सब्सक्राइब कर लो और फिर इसको आप मंथली पीडीएफ को पढ़ना शुरू कर दो और इसको बैकवर्ड पढ़िए। मीन्स पहले अक्टूबर का पढ़िए, फिर सितंबर का, फिर अगस्त का, इस तरीके से पढ़ते जाइए ताकि ये वक्त के अंदर आपका करंट अफेयर अच्छा हो जाए। फिर काफ़ी लोगों की बैंकिंग की नॉलेज नहीं है। 190 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने प्लेलिस्ट आपको दी हुई है, इससे अधिक वीडियो उसमें से देख लीजिए, वो भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। और तीसरा आप काम कर लीजिए, इंग्लिश को इम्प्रूव कर लीजिए। इस पीरियड में इंग्लिश की अच्छी ग्रामर बुक पढ़ लीजिए इन दिनों में। जब आप इस ग्रामर बुक को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी। रैन एंड मार्टिन बहुत अच्छी किताब है, इसको पढ़िए। तो क्योंकि अगर हम ऐसी खबरों में डिस्कशन में लगे रहेंगे, मन खराब होता रहेगा
और टेंशन बढ़ती जाएगी, हासिल कुछ नहीं होना। अब जब एग्ज़ाम होंगे तभी हम बैठ पाएंगे। अब हमारे हाथ में नहीं है एग्ज़ाम्स की डेट डिसाइड करना। जैसे चल रहा है हमें उसके अनुसार अपने को बदलना है। जीवन में वही लोग कामयाब होते हैं जो थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं। थ्रेट तो आ ही गया ना हमारे सामने। अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाना था आरआरबी का, दोनों एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने थे, पूरी तरह से तैयार थे आप, नहीं हुए। आप कहीं जाके जनवरी एंड या फरवरी में ये एग्ज़ाम होगा। इसी तरह आईबीपीएस पीओ का नवंबर में हो जाना था मेन, वो भी लटक गया, वो भी जनवरी एंड फरवरी के लिए लटक गया। सिर्फ आईबीपीएस आरआरबी और आईबीपीएस क्लर्क टाइम पे होने की संभावना है। एसबीआई ने कितना तंग किया, फरवरी में प्री देने के बाद अब जाके अक्टूबर में मेन होएगा, अगर 31 को ठीक ठाक संपन्न हो जाता है। इसी तरीके से आरबीआई का कब का आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, वो नवंबर 22 को संपन्न होएगा, अगर सब चीज़ें ठीक रहती हैं। तो देखो कैसी स्थिति से आप गुजर रहे हो। मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत परेशान हो इस समय, मगर अगर हम ये कुछ नहीं करेंगे इस समय या सोचते रहेंगे, परेशानी बढ़ती जाएगी। यदि हम अपने मन को बदल लेंगे, किसी और जगह लगा देंगे, कंस्ट्रक्टिव साइड में लगा देंगे, तो ये आपका दुख थोड़ा कम हो जाएगा और ये टाइम आपका अच्छी जगह इस्तेमाल हो जाएगा। और ये जो इस्तेमाल की हुई चीज़ें हैं आपकी, ये आपको जीवन बनाने में काम आएंगी जब एग्ज़ाम्स होंगे। बहुत सोचने के बाद मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है, क्योंकि जब से ये घटनाक्रम हुआ है मैं भी आपकी तरह चिंतित हूँ। मुझे भी उसी तरीके से परेशानी हो रही है जैसे आपको हो रही है कि ये क्या हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था, एग्ज़ाम हो जाने थे, अचानक ये क्या हो गया। मगर जो भी हो गया, अब हमें इसको झेलना है, हमें इसको बोल्डली फेस करना है और इसमें से भी एमर्ज होना है विक्टोरियस। हार नहीं माननी है, नेवर गिव अप, हार नहीं माननी है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।